So a very warm welcome to all of you from the Integrated Wellness Clinic team. And today's interactive session is from fatty liver to fit liver. It is an integrated wellness clinic initiative, 360-degree care. To those who are attending our session for the first time, we would like you to understand the concept of integrated wellness. Our clinic was established with the vision to provide an integrated approach in prevention as well as management of diseases. It brings the best of modern medicine and natural techniques of healing under one roof. We strongly believe that each patient is different from the other, and we manage him or her with minimum medicines and try to control his or her disease and prevent complications. Today we have this team of our integrated wellness clinic with us, who are all specialists in their own field of work with over 20 years of experience. Dr. Ruby Bansal, she's a well-known HIV and lifestyle disease expert heading the wellness department at Yashoda Hospital. Dr. Deepika Kohli, a renowned clinical nutritionist and dietitian with enormous experience and working at Radix Healthcare and Jeevan Anmol Hospital. Myself, I'm Dr. Priya Kapoor. I'm a homeopathic consultant and chronic disease expert at Max Super Specialty Hospital, Vaishali. So, today's topic, non-alcoholic fatty liver is one of the most common causes of chronic liver disease globally. Prevalence of this disease is estimated to be around 9 to 32% in the general Indian population, with a higher incidence rate amongst obese and diabetic patients. This brings it under lifestyle disease category and can be reversed in some cases. Dr. Ruby Bansal will elaborate on early diagnosis and early reversal as well as prevention. Dr. Deepika Kohli will guide us about the role of diet in cases of fatty liver. I will talk to you about the role of homeopathic medicines, but it is most important to understand that only when you adopt to all these measures together, the effect is quick and permanent. All our specialists prepare a tailor-made diet, medicine, yoga, and meditation regime, fully understanding your causes and your lifestyle. With us, you can be reassured of complete cooperation among different doctors of different pathies. This, dear friends, is a very rare combination. Our primary aim is prevention and early diagnosis. Meanwhile, as the experts are talking to you, please send your queries to me on my personal chat. Each one of the queries will be answered in the end, but please be specific to fatty liver. Over to you, Dr. Ruby Bansal. Thank you. Namaskar, everybody. So, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल का टाइम सिर्फ नमस्कार का है और हम सब लोगों को बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी कल्चर को वापस अडॉप्ट कर लेना चाहिए, राइट? सो आज बात करते हैं फैटी लिवर की. I will use a mixed language because few of people don't understand properly English. So I think we will be more in Hindi, and I believe Hindi everyone knows. It is our matrabhasha. Okay, right. So I will try to be mixed. So liver क्या है? Liver is the second largest organ. दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि responsible है wide variety of the functions including processing everything we eat or drink, right? जितना भी हम सब कुछ खाते हैं उसको जो प्रोसेस करने का, जैसे मिक्सी होती है ना, आप जो भी कुछ घर में बनाना चाहते हैं तो मिक्सी में प्रोसेस होता है, मक्खन निकालना है तो मिक्सी में प्रोसेस होता है, तो वो ही काम हमारा लीवर करता है. एंड फिल्टरिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंस को फिल्टर करता है फ्रॉम द ब्लड. एंड टू मच फैट इन द लीवर can lead to the long-term liver damage. That's what we will talk to today. So क्या होता है फैटी लीवर? फैटी लीवर जब बॉडी बहुत ज्यादा फैट बना लेती है और जो कि मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है एफिशिएंटली, तो जो एक्सेस फैट है stored in the liver cells, और जहां पर कि ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और हम जिसको ही समटाइम्स जो है हम
लाइक इंसिडेंटल डायग्नोसिस में और किसी चीज में हम उसको डायग्नोस कर पाते हैं। तो कितने तरह के होते हैं टाइप ऑफ फैटी लिवर? अल्कोहलिक फैटी लिवर और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक मतलब जो लोग शराब पीते हैं वो वाला फैटी लिवर, और जो लोग नहीं शराब पीते हैं उनको भी फैटी लिवर होता है। तो नॉन अल्कोहलिक जो है 2 टाइप के होते हैं। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसको हम NAFLD बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, या सिंपल फैटी लिवर जिसकी हम आज मेनली बात कर रहे हैं, है ना, जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है। नॉन अल्कोहलिक स्टेथोहेपेटाइटिस होता है एक NASH, जो कि एक दूसरी बीमारी है जो कुछ और इन्फेक्शन की वजह से होती है। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते हैं पर उनमें फिर भी फैटी लिवर होता है, तो किसी और तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या और तरह की हेपेटाइटिस, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मीन्स NAFLD, जो डॉक्टर प्रिया ने बताया कि करीब 34% लोग जो है फैटी लिवर का शिकार हैं। अगर मैं अपने खुद के डाटा की बात करूं, जो कि मैं पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल और मैक्स हॉस्पिटल में 10 साल का मेरा डाटा था, करीब 40,000 पेशेंट्स का, तो वहां पर जो मेरा अपना पर्सनल डिपार्टमेंट का जो इंसिडेंस था फैटी लिवर का, दैट वाज क्रॉसिंग 60%। सो अगर हमने जो है वहां पर 40,000 लोग का चेकअप किया था, हेल्थ चेकअप, तो उसमें करीब करीब जो है 60% लोगों को फैटी लिवर पाया गया था, सभी एज ग्रुप के लोगों को मिला। राइट, साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? एज सच कोई पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम नहीं होता है फैटी लिवर का। सम पीपल may have signs such as the tiredness or pain in the upper right side of the belly, है ना, क्योंकि लीवर हमारा जो है राइट साइड में होता है। राइट साइड आपका हैंड है, उसी साइड में जो है आपकी बेली में लीवर होता है। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, राइट साइड में लीवर होता है। तो वहां पर कुछ लोगों को कंप्रेशन फील होता है, कुछ लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होता है, कुछ लोगों को सारा दिन टायर्डनेस होती है। तो ये सिर्फ एक सिम्टम्स अगर हम सिंपल फैटी लिवर की बात करते हैं तो होते हैं, है ना। बाकी अगर लिवर डिजीज की बात करेंगे तो देयर आर मेनी सिम्टम्स। तो जैसे कि अगर मैं हल्का सा बता देती हूँ कि नैश की अगर हम बात करते हैं, जिसके की सिम्टम्स होते हैं जो कि सिरोसिस में भी कन्वर्ट करता है, स्वॉलन, पेट फूल जाना, ब्लड वेसल्स बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना, स्किन में रेड पाम्स, हाथों की पाम्स जो है रेड हो जाएंगे, स्किन और आई में प्रॉब्लम हो सकती है, येलोइश हो सकता है अगर क्योंकि हेपेटाइटिस है, तो वो उस तरह की होती है। पर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की बात कर रहे हैं जिसके कोई भी एज सच साइन एंड सिम्टम नहीं होते हैं। बहुत बार इंसिडेंटल पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्थ चेकअप डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ इंसिडेंटल, जो लोग रूटीन हेल्थ चेकअप कराते हैं उसमें काफी हद तक केसेस में नॉन ये फैटी लिवर पाया जाता है। 40,000 पेशेंट के करीब मेरे मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में थे, और यशोदा हॉस्पिटल में भी करीब 10,000 पेशेंट्स का हम लोग हेल्थ चेकअप कर चुके हैं। उसमें भी करीब करीब इसी तरह का परसेंटेज है, 50 to 60% लोगों को फैटी लिवर पाया जाता है। क्या कॉजेज है? अगर हम कॉजेज की बात करें तो फैटी लिवर एक दिन में नहीं होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो है कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ये बुखार नहीं है, वायरल फीवर नहीं है कि आपको आया और एक दिन में आपको पता चल गया। एब्सोल्युटली नॉट। ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अगर मैं बहुत ही उससे कहूँ तो ये माँ के पेट में जो बच्चा होता है वहीं से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पर हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये जो है कैसे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। बचपन से ही जो खाने पीने का आपका शेड्यूल रहता है, किस तरह का खाना पीना आप खाते हैं, किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे, बिकॉज लीवर जैसे कि आपकी मिक्सी भी एकदम से खराब नहीं होती है। मिक्सी में भी अगर आप रोजाना मक्खन निकालेंगे एक ही जार में, तो वो जो है कुछ दिनों के बाद आपको उसमें जो चिकनाई है वो जमी मिलती है ना, यू कैन नॉट क्लीन इट। तो यही प्रोसेस लीवर का होता है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितनी उसकी क्लीनिंग करते हैं। उसी हिसाब से वो चिकनाई आपको कुछ की 1 महीने में जमा हो जाएगी, कुछ की 6 महीने में जमा हो जाएगी। तो सेम लीवर का भी यही बिल्कुल एग्जैक्ट यही प्रोसेस है कि आप, हम लोग जो भी खाना पीना खा रहे हैं वो कितना मेटाबॉलिज्म हो पाता है लीवर में, और अगर वो लीवर से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता तो इट इज गेटवे टू मैनी डिजीज, मैनी लाइफस्टाइल डिजीज। लीवर से ही स्टार्ट होता है। तो कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं, बहुत सारे कॉजेज हैं। आपको अल्कोहल की, अगर अल्कोहल की हम बात इसमें कर रहे हैं, अल्कोहलिक लिवर डिजीज बिल्कुल होता है। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं उनमें फैटी लिवर पाया जाता है और उनमें रिवर्सल डिफिकल्ट होता है। और जो सिंपल फैटी लिवर है उसका रिवर्सल है। उसके कॉजेज, आपका सबसे बड़ा कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द इंसुलिन रेजिस्टेंस, परंतु वो एक सबसे बड़ा कारण होता है फैटी लिवर का, इंसुलिन रेजिस्टेंस।
इंसुलिन का रोल क्या होता है कि हम जितना भी कुछ खाते हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन जो होता है तो वो उसको मेटाबॉलिज्म करता है, शुगर को कन्वर्ट होने से बचाता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, तो शुगर का वो नहीं, शुगर के लेवल्स नहीं बढ़ते हैं। तो फैटी लीवर जिन लोगों को होता है, अगर हम कभी नेक्स्ट टाइम टॉपिक में या एक दो बार के बाद हम लेंगे अपना शुगर का भी सेशन, तो उसमें जो हम बात करते हैं कि फैटी लीवर की वजह से भी डायबिटीज होती है, या जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको फैटी लीवर हो सकता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? अल्कोहल, स्मोकिंग, आपका जो इनटेक ऑफ द फैट, कंजम्पशन ऑफ द ट्रांस फैट ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन, अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो जो है वो भी कारण होता है फैटी लीवर का। किसी को अगर जो है हाइपोपिट्यूटरीज्म है, पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अगर जो है वो फंक्शन नहीं करती तो फैटी लीवर हो सकता है। इवन हाइपोथायराइडिज्म में फैटी लीवर हो सकता है। स्लीप एपनिया जिन लोगों को होता है उनको भी फैटी लीवर हो सकता है। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो होता है उनमें भी फैटी लीवर दिखाया जा सकता है। और जिन लोगों का मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल में स्पेशली ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं वो ज्यादा होता है, तो वो फैटी लीवर, दोनों वाइस वर्सा है। जिन लोगों को फैटी लीवर होगा उनका ये ज्यादा होगा, और जिन लोगों को ये ज्यादा होगा तो उनका फैटी लीवर भी होगा। तो जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमारी 5 चीजें आती हैं। लार्ज वेस्ट साइज, जो आपका वेस्ट है वो बड़ी है, एक्चुअल वेस्ट होना चाहिए आपकी हाइट का करीब करीब आधा। तो अगर जो है आपका उससे ज्यादा है तो फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा है। हाई ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो ये जिन लोगों को होता है ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है। लो लेवल ऑफ एचडीएल जिसको कि हम अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, वो अगर जो है कम होता है तो भी फैटी लीवर का चांसेस होता है। हाई ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो भी जो है फैटी लीवर को, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही पार्ट है। और हाई ब्लड शुगर, ये सारे 5 चीजें जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो फैटी लीवर वहां पर जरूर पाया जाता है ना। कुछ मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से लीवर, जो लीवर पर डायरेक्टली असर करती हैं, तो उनकी वजह से भी फैटी लीवर होता है। जैसे कि कोई लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, मेथोट्रेक्सेट टाइप की मेडिसिन है, या एस्ट्रोजेंस बहुत लेते हैं, उनको फैटी लीवर होने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल जाता है, गॉल ब्लैडर का मेन काम है फैट का मेटाबॉलिज्म, जिन लोगों का गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो फैट का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज करता है, उन लोगों को भी ये है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि पता कैसे चले कि फैटी लीवर है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं तो जो कि हम अर्ली डायग्नोसिस की हम बात कर रहे हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो रूटीन हेल्थ चेकअप में लोग आते हैं तो इंसिडेंटल फाइंडिंग, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो सबसे बड़ा टेस्ट है फैटी लीवर को जानने का अल्ट्रासाउंड। वहां पर वो लीवर का जब अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का करते हैं तो उसमें उनको कुछ लाइट कलर की शेडोज दिखती है। तो शेडोज दिखने का मतलब होता है वो एरिया फैटी लीवर, तो वो जो है ग्रेडेड में डिफाइन करते हैं फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड द सिरोसिस। 4 स्टेजेस इसकी मेनली होती हैं। तो अगर अल्ट्रासाउंड सब लोग कराएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो अर्ली डिटेक्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लिपिड प्रोफाइल कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने बताया जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा उनमें फैटी लीवर की संभावना ज्यादा हो जाती है। लीवर फंक्शन टेस्ट, स्पेशली लीवर फंक्शन में आपके जो SGOT और SGPT और एल्कलाइन फास्फेटेज 3 स्पेशल मार्कर होते हैं, जो अगर बढ़े हुए होते हैं तो वो भी फैटी लीवर को, जहां हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर है और लीवर मार्कर्स भी बढ़े हुए हैं, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें देखना है तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस टेस्ट करना होता है, तो तभी पता चलेगा कि रेजिस्टेंस तो नहीं है ना। अगर हम जैसे नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो फेटोस्टेसिस, तो हम हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई का टेस्ट भी करते हैं देखने के लिए कि अगर ये जो है किस कारण से फैटी लीवर है। और फाइब्रोस्कैन एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड के बाद का, जो कि आजकल लीवर बायोप्सी करने की जरूरत नहीं होती है। तो जिन केसेस में होता है तो उसमें हम लोग फाइब्रोस्कैन टेस्ट करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि सिरोसिस का क्या लेवल है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सब लोगों को क्लियर है। अगर इस बीच के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सेंड योर क्वेरीज। ट्रीटमेंट की अब जहां तक बात करते हैं हम, ट्रीटमेंट, क्योंकि आई विल बी हैप्पी टू आंसर द क्वेरीज मोर। ओके, तो मैं थोड़ा सा डॉक्टर रूबी, जस्ट 1 मिनट डॉक्टर रूबी, आई थिंक एक क्वेश्चन रिलेटेड आया है। इफ आर ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड फ्लक्चुएशन इन BP ब्लड प्रेशर
ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं क्या फैटी लिवर के? अलोन फैटी लीवर के तो नहीं कह सकते हैं आप, साथ में अगर ये जो है सिम्टम्स हैं आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के, और साथ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर रहता है और वो है, तो वो भी जो है साथ में एसोसिएटेड हो सकते हैं। मैंने कहा ना, अलोन फैटी लीवर आज सच आपको कोई सिम्टम नहीं देता, पर आपकी बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाता है, या फैटी लीवर आपकी बहुत सारे सिस्टम को खराब करता है, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें, राइट? ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। आई थिंक एक पेशेंट ने पूछा है, उनके लिवर का साइज है 16.7 सेंटीमीटर्स। लिखा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मेल पेशेंट है या फीमेल पेशेंट है, क्या उनको दवा लेनी चाहिए? 16.7 सेंटीमीटर। आपको अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिखाना होगा कि 16 पॉइंट उसमें कितना क्या उनके नॉर्म्स है, बिकॉज जो हम जब हम मेजर करते हैं तो हर मशीन के हिसाब से उसके मेजरेबल रीजन होते हैं, और फैटी लीवर और एनलार्ज लीवर दोनों चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और एक साथ भी हो सकती हैं। जब लीवर बहुत ज्यादा फैटी हो जाता है, कई बार एनलार्ज लीवर के बहुत सारे अगर और कारण भी होते हैं, जैसे कि किसी को डेंगू हुआ, किसी को टाइफाइड हुआ, तो उनको एनलार्ज लीवर होता है, बट नॉट नेसेसरी कि फैटी लीवर होगा, है ना। मलेरिया होता है, उसमें भी एनलार्ज लीवर हो सकता है, लीवर का साइज बड़ा हुआ, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर वो फैटी लीवर हो। और फैटी लीवर, ये जरूरी नहीं है कि फैटी लीवर जिन लोगों को होता है उनके लीवर का साइज बड़ा होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो जहां तक जो हम ये सिंपल टाइप का फैटी लीवर जब हम पाते हैं, तो बहुत सारे, बहुत ही मतलब 1 और 2% केसेस में मुझे कभी साइज बढ़ा हुआ मिलता है, अदरवाइज जो है ये सब नॉर्मल साइज के लीवर होते हैं, सिर्फ फैटी डिपोजिशन होता है। फैटी डिपोजिशन का मतलब होता है कि जो उसकी सेल्स हैं, जैसे आपने ये मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना, तो उसमें जो है इस तरह से लीवर में भी इस तरह की सेल्स होती है, तो सेल्स में जब डिपोजिशन हो जाता है तो कुछ सेल्स जो है ब्लॉक हो गई। अगर वहां पर शहद, आपने मधुमक्खी का छत्ता, वहां पर कितनी मधुमक्खियां बैठी हैं या उनमें शहद है और कितना वो बॉक्सेस खाली हैं, राइट, वो जज करके हमें देखा जाता है कि ये फैटी लीवर कितना है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। तो वो जब खाली सेल्स कम दिखते हैं और सब भरे हुए दिखते हैं, तो उससे जो है ये फैटी लीवर को का अनुमान लगाया जाता है कि किस ग्रेड का फैटी लीवर है। एक और क्वेश्चन आया, क्या हर्निया कैन इट बी रिलेटेड टू फैटी लिवर? एब्सोल्युटली नॉट। हर्निया एक अलग बीमारी है जो कि हम फिर कभी उसमें बात कर सकते हैं, मैं फिर भी अगर जो किसी ने क्वेरी किया है तो मैं बता देती हूँ। हर्निया एक जो है आंतें जो होती हैं आपकी दो तरह की, अगर इंग्वाइनल हर्निया की हम बात कर रहे हैं और अम्बलाइकल हर्निया, अम्बलाइकल जिसको नाभिक हर्निया कहते हैं, इंग्वाइनल जो जांग में होता है, तो वहां पर एक, जैसे कि आपने नाली पर आप जाली लगाते हैं, तो उस तरह की जाली होती है उन दोनों जगहों पर, नाभि पर भी और जो इंग्वाइनल में, दोनों साइड पर। वो जाली फट जाती है या कमजोर हो जाती है, तो जो आपकी आंतें हैं वो उसमें डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, उसमें गिरने लगती है, हम उसको हर्निया बोलते हैं। इसका फैटी लीवर से कोई रिलेशन नहीं। प्लीज, ओके, प्लीज गो अहेड। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, अब ट्रीटमेंट क्या है फैटी लीवर का, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों को फैटी लीवर होता है उन्हें समझ नहीं आता, उनको कोई सिम्टम तो होता नहीं, इट इज नॉट फीवर कि मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, तब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ठीक होना है। पर फैटी लीवर एक बहुत ही इग्नोरेंट बीमारी है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि उससे कोई परेशानी, उनको फिजिकल परेशानी नहीं हो रही है, और अंदरूनी क्या क्या परेशानी हो रही है वो समझ नहीं पाते। जब कुछ समय बाद डायबिटीज डेवलप हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है, तो जो है लगता है कि हाँ हमें जो है कोई इस तरह की जो है कोई बीमारी हुई है, या तो उनको तब भी कारण नहीं समझ आता कि फैटी लीवर है। बट फैटी लीवर, मैं फिर से बता रही हूँ कि गेटवे टू सो मेनी ऑफ डिजीज, राइट। लीवर क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। प्रोसेसिंग, मिक्सी खराब हो जाती है तो आपके बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो शरीर में अगर हार्ट और ये लीवर, हार्ट रुक गया तो आप ही रुक गए, पर अगर लीवर रुक गया तो आप धीरे 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 बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। राइट। अब ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है? एज सच फैटी लीवर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, राइट। रिवर्सल पॉसिबल है, काफी केसेस में पॉसिबल है, पर उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत जो है आप ही को करनी होगी, उसमें डॉक्टर आपकी मेहनत नहीं कर सकते हैं, है ना। वो आपको मेहनत, आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं ट्रीटमेंट मॉडल की। सबसे अच्छी अप्रोच होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच का डॉक्टर प्रिया ने आपको पहले ही बताया कि क्या अप्रोच होती है। जब हम कंबाइन करते हैं कई सारी चीजों को, अगर आप मुझे कहें, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, आप मुझ पर आके कहेंगे कि मैडम कोई ऐसी दवाई लिख दीजिए, जो कि बहुत सारे लोग आते हैं कि कोई दवाई लिख दीजिए जिससे फैटी लीवर ठीक हो जाए। बिलीव मी, ऐसी कोई मेडिसिन अभी तक बनी नहीं है जिससे कि आप कोई दवाई खा ले तो फैटी लीवर ठीक हो जाता है। डेफिनेटली हम देते हैं दवाइयाँ, सो बहुत सारी दवाइयाँ सपोर्ट, पर वो आपको डायरेक्ट फैटी लीवर को ठीक नहीं कर सकती।
अप्रोच क्या चाहिए? अप्रोच आपको चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन प्लस द लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल इज द की. लाइफस्टाइल इज द की फॉर प्रिवेंशन एंड रिवर्सल. दैट इज द ओनली थिंग. आज कोरोना के टाइम में भी आप लोग देख रहे हैं कि सिर्फ लाइफस्टाइल की बातें हो रही हैं. लोग अपनी आदतों को बदलना ही नहीं चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ठीक ही नहीं करना चाहते हैं. जैसे कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिन लोगों को जो बैठे रहते हैं, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है फैटी लिवर होने का, कि आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो वो फैटी लिवर क्रिएट करता है. और खाना आप जब बहुत ज्यादा ईट आउट करते हैं, बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं, बहुत ज्यादा ऑयल कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन है, बहुत ज्यादा ट्रांस फैट है. और इवन यही नहीं, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, ये सब इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे केमिकल्स जो पाए जाते हैं. आजकल जो है, अगर हम 2000 की बात करें तो 2000 में करीब 1 लाख जो डेंजरस केमिकल थे वो अवेलेबल थे. आज की अगर हम बात करें तो 20 साल के बाद करीब थी उसमें जो है 2.5 गुना की वृद्धि हो चुकी. करीब जो है 3 लाख 3.5 लाख जो है उस तरह के केमिकल्स हैं जो कि हमारे शरीर को हार्म करते हैं. Right. वो पोल्यूटेंट भी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो एनवायरमेंट में है, चाहे वो सॉइल में है, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स में है, चाहे वो आपके जो है किसी भी तरह के जंक फूड में है, या आपके जो है किसी भी और चीजों में है. तो वो अब ऑप्शन क्या है ट्रीटमेंट का? आई थिंक डाइट पार्ट डॉक्टर दीपिका बताएंगी. डाइट का बहुत बड़ा रोल है, होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है. हम लोगों के कई पेशेंट हम लोगों ने साथ में ट्रीट किए. मैं HIV पेशेंट्स बहुत सारे ट्रीट करती हूँ, मेरे पास HIV पेशेंट्स बहुत हैं, और इवन उनके भी फैटी लिवर हमने होम्योपैथी और डाइट की मदद से काफी लोगों को कंट्रोल किया है. बहुत सारी जहां पर कोमॉर्बिडिटीज होती है वहां पर रिवर्सल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हम कोई भी आपको ऐसी फाल्स इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि जो कि पॉसिबल है. बट जो सिंपल फैटी लिवर है, अगर अर्ली डायग्नोसिस है, उसका रिवर्सल एकदम पॉसिबल है. यंग पेशेंट्स जिनको कोई डायबिटीज नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, CAD नहीं है, तो उनमें रिवर्सल पॉसिबल है, या जो मेहनत ज्यादा कर सकते हैं. Right. क्या है इम्पोर्टेंट इज बी थैंकफुल टू योर लिवर, बी काइंड टू योर लिवर, डोंट अब्यूज. क्योंकि आप लोग हम लोग अनोइंगली अब्यूज करते हैं लिवर को, है ना. कुछ भी खा लेते हैं, जो मिलता है वो खा लिया. बेकरी प्रोडक्ट्स है, ये सब बहुत हार्मफुल है. डॉक्टर दीपिका आपको बताएगी. कोलेस्ट्रॉल को कम रखें, एक्सरसाइज मोर, मैनेज डायबिटीज, मैनेज योर ऑल अदर डिजीज, तो आप उसको जो है फैटी लिवर को बचा सकते हैं. अल्कोहल डेफिनेटली बिग नो टू द फैटी लिवर. जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके लिए फैटी लिवर को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है. फिर वो बाद में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं. और जितने भी अगर आप देखेंगे ट्रांसप्लांट ऑफ द लीवर है, वो ज्यादातर अल्कोहलिक लीवर डिजीज की वजह से होता है. अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से उनको ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है. So I think I will end it here. Yes. Priya, and I will be happy to answer the question. I will be taking after yours the treatment part, what we can help as a treatment thing. So, but I think first Dr. Deepika should tell what is the role of the diabetes, or role of the diet in the Yeah, Dr. Deepika, please. Yeah. Thank you, Dr. Ruby. Namaskar, sabhi ko. As the name suggests, fatty liver, deposition of fat in the liver. जैसा कि डॉक्टर रूबी ने बहुत ही अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया है, deposition of fat in the liver. It is mostly diagnosed in people who are non-alcoholic, especially is mostly diagnosed in people who are obese and laying a sedentary lifestyle. But a sedentary lifestyle, changes in lifestyle can do wonders in reversal in initial stage. इनिशियल स्टेज में हम जब से अपने अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट लेके हम इसमें रिवर्स कर सकते हैं, बट विद वेरी गुड लाइफस्टाइल चेंजेस. तो क्या करना है हमको? एक अच्छा सा डाइट में क्या होना चाहिए? इट शुड बी अ लो कैलोरी, हाई फाइबर डाइट विद प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो व्हाट शुड इट बी? व्हाट शुड बी द पैटर्न ऑफ डाइट फॉर अ फैटी लिवर पेशेंट? जैसा कि अभी डॉक्टर रूबी ने बताया, ये ओवरनाइट नहीं हो जाता है डेवलप फैटी लिवर. हम बचपन से ही हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल तो बहुत ही खराब है. सभी बच्चों का शुरू से ही लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है. सिर्फ दे आर बेस्ड ऑन जंक फूड एंड दे आर बेस्ड ऑन मैदा प्रिपरेशन, हाईली प्रोसेस्ड फूड, विच इज द मेन रीजन फॉर फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक स्पेशली. So 10%, if we are going for 10% weight loss also, it will help to give a very good desirable changes in your liver. Okay, so what will be your diet?
you should avoid simple carbohydrates and go for complex carbohydrates. So what are simple carbohydrates? Simple carbohydrates are your bakery products, your cookies, like we are very fond of, all our children are very fond of cookies, biscuits, namkeen, junk foods, chips, highly processed food, maida based preparation, breads. All these kinds of food leads to a fatty liver. So we should avoid this, and a high carbohydrate diet which contains fiber. इसमें soluble fiber का बहुत अच्छा रोल है. Soluble fiber हमें कहाँ से मिलेगा? Oats से. Oats is a very good source of soluble fiber. तो हम breakfast में oats ले सकते हैं, vegetable oats with lots and lots of this. Nuts also help in giving very good changes in your liver. So what nuts? Because it is giving vitamin E. So vitamin E is also very good for your liver. So healthy fats. Fats ऐसा नहीं है you have to stop the fats. You can have very good fats in the form of omega-3, in the form of nuts and seeds. If you're fond of fish also, you can take a little portion of fish also, like tuna, salmon you can take. But everything should be with very good amount of fiber in it. Very, very good. Fiber कहाँ से मिलेगा हमें? Lots and lots of indulge greens in your diet. जितना ज्यादा फाइबर लेंगे, जितना ज्यादा सलाद खाएंगे, उतना अच्छे से हम इसको क्योर कर पाएंगे. तो उसमें हमें जैसे कोई भी मील लेने से पहले एक प्लेट भर के सैलेड लें. मील में आपका कार्बोहाइड्रेट कम, सिंपल कार्ब्स कम, दाल, सब्जी, सैलेड, वेजिटेबल, रायता ज्यादा होना चाहिए. तो इसके लिए हमें लो फैट हाई फाइबर डाइट की जरूरत है. साथ ही हम कुछ ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक जिसे हम कहते हैं फैटी लिवर रिवर्सल के लिए. बट इन द इनिशियल स्टेज टर्मरिक वाटर ले सकते हैं, मिंट वाटर ले सकते हैं, बीट रूट वाटर ले सकते हैं. हम बीट रूट वाटर में नेचुरल क्लींजर होते हैं, हल्दी में भी नेचुरल क्लींजर होते हैं. हम खीरा बहुत अच्छा नेचुरल क्लींजर है. इस तरह की चीजें हम डाइट में अगर जरूर ऐड करेंगे तो हमें जरूर हमारे लिवर को फायदा होगा. साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जरूरी हैं, बट अगेन लो फैट डेयरी हमें बहुत हेल्प करेगा. गुड अच्छा प्रोटीन मिलेगा, अच्छा हमें वेल बैलेंस डाइट लेनी है, बट हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा प्रिपरेशन, शुगर, कैंडीज, अरेटेड ड्रिंक्स, सोडा ड्रिंक्स, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है डाइट में. और किसी का कोई क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, अपना जो भी क्वेरीज हैं वो दे सकते हैं. ओवर टू डॉक्टर प्रिया. डॉक्टर प्रिया will let you know about some homeopathic medicine. Okay, so quickly let's understand the role of homeopathy in fatty liver. Actually, homeopathic medicine is a natural system of healing and it promotes the natural functioning of the body. So any medicines which we use must promote this natural healing process. Here we need to understand what remedies have an action on the liver. You can find over-the-counter liver tonics. If you just want to use homeopathy for patchwork, you can go ahead and buy those tonics. They have been working for years and they still work. I'm not saying they don't work, they do work. They have a concoction of all the remedies which act on the liver and they are definitely helpful, but for a short period. Till you understand your reasons for getting a fatty liver, you cannot work on a reversal. Let's say you understand your reasons for getting a fatty liver with a consultation session with Dr. Ruby, and then Dr. Deepika has given you a very strict diet plan. Most of us are able to follow it. But there are few patients who have very strong cravings and desires. Young people commit to themselves that they will not drink colas or eat snacky food. But every day they fight this commitment and they go back to their original food. So we have an excellent remedy, phosphorus. This patient desires chilled water, snacky food, and ice creams. It works beautifully on the liver. Such patients also have recurrent cold cough, but they still desire cold food. It is beyond their control. When we use this remedy, we have found that cravings reduce. And they are able to follow Dr. Deepika, Dr. Ruby Bansal's advice. And together, when we lift the patient from all sides, we get beautiful results. Another remedy, chelidonium. This patient is the opposite of phosphorus. He will prefer piping hot tea, piping hot milk, or hot food and drinks. He has a lot of nausea, vomiting, colic, distension, backache, constant pain in the inferior angle of right scapula. And then if the patient has drug-induced fatty liver, we have a different remedy, Nux vomica.
Friends, we have lots and lots of remedies based on your particular problem and your condition. Please, you can send me the questions quickly. We are ready to answer your queries. We have just 3 more minutes. Okay, Dr. Deepika, what is better, refined oil or mustard oil for cooking? Mustard oil is better. Mustard oil is better. Definitely better. For frying also, we can use mustard oil. It's better than vegetable oils. Okay, good, thank you. And canola oil also for this fatty liver. Canola oil, olive oil is also very good. But we need not fry in olive oil. Okay. It is not good for frying. It is good for salad. Right. So better to use mustard oil. Please comment on somebody asking about the ghee. Please comment on ghee. Ghee. Huh? Ghee. Desi ghee. Ghee, yeah, ghee, 2 to 3 teaspoon of desi ghee we should have, but it should be in the raw form. We should not do deep fryings in ghee. You can spread it over your chapati, you can spread it over your paratha, you can spread it over your dals, but do not fry in desi ghee. Okay. And with it loses its nutrients. Most important. Okay, somebody is asking about a dinner plan. Please, we can give you excellent dinner plans, individual consultation needed with Dr. Deepika. All of us can work together. We can work for you. No problems. Another question, craving for sweets. Yes, we can cure your cravings for sweets, salt, colas, everything. We do that every day. And I think quickly, all good things come to end. I just want to wind up quickly. You can write keep writing your queries. We really hope that this session was fruitful to you. And we are thankful to each one of you for joining us and for giving your valuable time to us. We have 6 months packages for fatty liver depending on your comorbidities. Kindly reach out to us to help us help you. And we appreciate your feedbacks. Please send your feedback so that we keep improving with each session. We are really here to help you 24/7. Please reach out to us. More queries, please. Well, we can take one more question quickly. Yeah. Any question? No more questions. I think everybody's treated the fatty liver today. Somebody's asking. Wow, yeah, I can see a question quickly. Yes. Plan a meeting about the diet plan. Okay. And my mom has stage 2 fatty liver. Can it be reversed, Dr. Ruby? Stage 2 fatty liver. It depends what all the comorbidities Yes. are there. If she is mentioning someone is mom's difficult to reverse the fatty liver because it's depend on the most of the work it's done by the exercise. Yeah, we can give her a plan. Start running. Yes, we can give her a plan. Best result to the fatty liver. Yeah, running, aerobics, vigorous exercise. Yes. Yes, exercise which needs more energy. So you have to burn the calories, not just walking like आप घूमते जा रहे हो, but it needs intensive exercise. Because पहले आपका फैट कम होगा तब लीवर का फैट कम होगा. You should understand कि सेल्स में बना हुआ है, सेल्स में फैट्स बना हुआ है.